Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll start our lesson 8. Okay, Misbill the Otter by Maxwell. Okay class, open this chapter. If we talk about this chapter, in this story, the author Gavin Maxwell tells us about his unusual pet Misbill, an otter. He is talking about his unusual pet that is otter and its name is Misbill. He tells us that when his dog died, he decided to have another pet. Soon he shifted to Iraq, where he saw people were keeping otters as a pet. Okay, what happened actually? Arthur had a pet. It was a dog. When he died, then he planned to have another pet. And when he shifted to Iraq, he found that people were just habitual to have the pet otter as a pet. Okay, otter here means Udbilaw. In Hindi, it is known as Udbilaw. I'll show you the pic of that otter. Okay. He also decided to have an otter as a pet. He describes while he had to shift to England how much problems were faced by him in taking Misbill with him. He faced lots of difficulties and problems while having Misbill. Okay, he had just explained everything in this lesson. You will when you will go through this, you will come to know about all these things. On reaching London, people did not recognize the otter. They used to make guesses about the animal. The otter thoroughly enjoyed the time spent with the otter. Okay, when the otter reached London with Miss Bill, the people were not able to recognize the otter. Okay, and they used to make guesses about the animal. They just assumed that maybe this is that. But what happened? They were not able to recognize it. Okay, and other enjoyed the company of that otter. We will read all these things in this lesson when we will go through the text. Okay, be attentive. This is your lesson. Gavin Maxwell lives in a cottage in Cumsferna in the West Highlands in Scotland. Clear class? अथर जो है कॉटेज में रहता है जो कि केमिसफियरना में है जो कि वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड में है. व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब उसका डॉग मर जाता है, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, बट लाइफ विदाउट अ पेट वाज लोनली. रीड व्हाट हैपेंड व्हेन देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स. फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब उसका डॉग मर जाता है तो लाइफ उसकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है. तो वो क्या प्लान करता है, वो अकेला मतलब फील करता है. और आप मैक्सवेल्स के वर्ड्स में ही देखेंगे कि वो क्या कह रहा है. क्लियर? गेविन, ओके. अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउथर्न इराक. अभी कह रहा है कि 1956 में ये साउथर्न इराक गया. बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, a thought came into my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camasfierna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. Now he is talking about an otter as a pet. Okay. ये कहता है कि जब ये अपने माइंड में ये सेट कर लिया, इसके दिमाग में ये आ गया कि इसको एक पेट रखना चाहिए. ओके, व्हेन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड. क्रॉस्ड माय माइंड का क्या मतलब है? अ थॉट केम इनटू द माइंड. अ थॉट केम इनटू द माइंड. उसके दिमाग में एक विचार आया. फिर क्या है ये? स्टोन्स थ्रो, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. रिंग्ड बाय वाटर, अ स्टोन्स थ्रो, इसका मीन्स एक वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. एंड एमिनेंटली सुटेबल, वेरी सुटेबल, बहुत ज़्यादा सुटेबल है वो प्लेस. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ पे रहता था वो जगह जो है एक ऑटर को रखने के लिए सुटेबल थी. वो जो एनवायरनमेंट था वो सुटेबल था, वहाँ काफ़ी लोग रखते थे, तो ये उसके लिए सही था. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. फिर उसके बाद कह रहे हैं for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs.
अब ये अपने इस डाउट को अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है, तो उसका फ्रेंड क्या कहता है, टिग्री मार्शेस अमस्पोटेन Mesopotamian marshes or Iraq marshes are a wetland or area located in southern Iraq. वहाँ पे एक वेटलैंड है, एक ऐसा एरिया जो कि गीला टाइप का है, मार्शेज मतलब एक तरीके से दलदल सा होता है, तो ये वहाँ पर है, एंड पार्शियली इन साउथ वेस्टर्न इराक एंड कुवैत, ये उसी जगह पे है, इराक में ही पाए जाते हैं ये, साउथ वेस्टर्न इराक में या फिर कुवैत में, तो ये वहाँ के बारे में बात कर रहा है, टिग्रीज मार्शेस के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ठीक है, और इतने इजीली कि जैसे कोई मॉस्किटोज, और हमेशा वो वहां पर टेम टेम मने उनको उनका पालन भी किया जाता है अरब्स के द्वारा। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। अब ये लोग जो है बसरा जाते हैं ताकि जो है वो जनरल से मिल सके, जो जिसे कंसल्ट करना है कंसुलेट जनरल से, और वहां से अपने आंसर को मेल के थ्रू गेट कर सके। As the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. अब ये कहता है कि उसकी फ्रेंड की तो मेल आ गई, उस जो भी उसने क्वेरीज करी थी, लेकिन इसकी मेल नहीं आती है। I cabled here means sent a message. Cabled here means sent a message by telegraph. Okay. तो ये कहता है मैंने मैसेज भेज दिया टेलीग्राफ के थ्रू इंग्लैंड में, एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. तो मैंने फिर कॉल करने की कोशिश की, मैंने जो है टेलीग्राम भी भेजा, लेकिन जो है पॉसिबिलिटी नहीं हुई, और कॉल जो है 24 आवर्स के लिए वहां पर एडवांस में बुक हो जाती है। क्लियर? On the first day the line was out of order. These are the reasons कि कॉल क्यों नहीं प्रॉपर लगती, क्यों 24 आवर्स के लिए बुक हो जाती है। फर्स्ट डे लाइन जो है ना क्लियर नहीं होती, आउट ऑफ ऑर्डर होती है। ऑन द सेकंड द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडेज, और अगले दिन वो बंद हो जाता है। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, कुछ और रीजंस हो जाते हैं, सर्विस खराब हो जाती है उनकी। ब्रेकडाउन मतलब होता है जैसे कि कुछ इश्यूज आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना सर्विस में। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। 5 days later my mail arrived. अब इसका फ्रेंड तो चला जाता है, लेकिन ये वहीं पर रहता है, मैनेज करता है, और वीक टाइम में मैनेज करता है उससे मिलने के लिए, और उसकी जो मेल है वो 5 days के बाद आती है, जिसका वो वहां पर वेट कर रहा था। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और ये मेल लेकर के अपने बेडरूम में जाता है। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs. Beside them lay a sack and squirmed means here twisted about from time to time. अभी कह रहा है कि इसकी जो इम्पोर्टेंट मेल आनी थी, वो मेल पढ़ने के लिए बेडरूम में जाता है, तो वहां देखता है कि 2 अरब्स जो है वो फ्लोर पे बैठे हुए हैं, और उनके बगल में एक तरीके का सैक है, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, सैक मीन्स बोरा टाइप का, और वो ट्विस्टेड, स्क्वेयर मीन्स हियर ट्विस्टेड अबाउट, ओके, वो बार बार ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्टेड अबाउट मतलब कि घूम रहा है, हिल रहा है, मुड़ रहा है टाइम टू टाइम, जैसे अंदर कोई हो उसमें। एंड देन they handed me a note from my friend, here is your order. और उन्होंने मेरे फ्रेंड की तरफ से, जो कि मेरा फ्रेंड पहले आ चुका था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए एक लेटर भेजा था जो उन्होंने मुझे दिया। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not ended before I do. अभी कह रहा है कि जब मैंने उस बोरे को खोला, तो मैंने देखा कि फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड, जो कि मतलब मेरी लाइफ में एक तरीके की नई शुरुआत हो गई, जो कि अभी तक समाप्त नहीं हुई। ओके, फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, मतलब वो बहुत खुश हो जाता है उसको देख करके, वो फिनिश नहीं होता है जो भी वो पाता है। आई नो, वो जानता है कि ये एंड इससे पहले नहीं था, और उसको जो भी मिलता है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुरू होता है, और एक नया फेज उसकी लाइफ का शुरू हो जाता है। दिस इज द ऑटर, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर। It is in fact a thraldom. Thraldom means here old fashioned, being under the control of, old fashioned. Okay. To otter, an otter fixation that I have since found to be shared by the most other people who have ever owned one. It is in fact a thraldom. अब वो क्या कह रहा है कि एक तरीके से थ्रेल्डम था, एक ओल्ड फैशन था ऑटर के लिए,
और एक तरीके का ये फिक्सेशन था. फिक्सेशन हियर मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग. वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करता है. ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग और अटैचमेंट वो फील करता है. हियर इट इज़ द मीनिंग ऑफ द फिक्सेशन एंड हियर इज द मीनिंग ऑफ द thraldom. That I have since found to be shared by most other people. जो कि ये अपने आप में महसूस करता था उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो कि ऑटर के लिए फील कर रहा था कि काफ़ी लोगों के साथ इसने महसूस करी थी. ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको पाके काफ़ी खुश होता है. The creature that emerged from this sake onto the spacious tiled floor of the concealed bedroom resembled most of all a very small meditatively conceived. Here its meaning an imagination of the Middle Ages. Dragon, conceived dragon. जब ऑटर इसके सामने निकल करके आता है सेक में से, तो इसके सामने वो इस तरीके से आता है जैसे कोई छोटा सा और मतलब कि मेडिवल एज का हो ड्रैगन हो कोई, जैसे कि उसको लगता है कोई मिडिल एज का कोई ड्रैगन इसके सामने आ गया हो. जब वो स्पेशियस टाइल फ्लोर के ऊपर उस बेडरूम में आके वो निकलता है उस सेक में से, उस बोरे में से. क्लियर? From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. Okay, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. उसके पूरे बॉडी पे टिप मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक टेल तक जो है मड लगा हुआ था. मड जो है एकदम कांटे की तरह मड उसकी बॉडी में पूरा तरीके से हो गया था. अब प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मेटल, एक तरीके से मेटल के रूप में, यानी कि वो एकदम कांटे की तरह निकला हुआ था मड, जिसकी वजह से मतलब वो सख्त हो रहा था और वो कांटे की तरह पूरी बॉडी में वो निकला हुआ था. Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या दिख रहा था? विजिबल प्रदर्शित हो रहा था सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक क्रिएचर. ठीक है, और जो कि चॉकलेट शेड में सामने आ रहा था, चॉकलेट कलर में, ब्राउन शेड में, ब्राउन कलर में दिख रहा था और पूरी बॉडी पे उसके मड लगा हुआ था. He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it was in his true color. अब ये जो है इसको देखता है कि जब वो हिलेगा तो डस्ट गिरेगी उसमें से, बट नेक्स्ट मंथ तक अथर इस चीज़ को मैनेज कर लेता है और सारे डस्ट को उसको रिमूव कर देता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर देता है जैसा, और उसका जो है रियल कलर जो था ब्राउनिश में वो उसको देखने को मिल जाता है. Misbil, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length questioned by geologist Leutrogal persipilata maxwelli or Maxwelli's otter. Here it is important thing which this paragraph has been mentioned. आथर जो है इसका नाम मिसबिल रखता है, इसको प्यार से बुलाता है. ठीक है, और ये एक ऐसी रेस है जो कि पहले जो है साइंस के लिए अननोन थी, लेकिन जब इसके बारे में पता चला समय के साथ तो क्रिश्चियन मीन्स नेम रखना, नेम रखा जाता है उसका. क्या नेम रखा जाता है? जूलॉजिस्ट के द्वारा. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो जूलॉजिस्ट के द्वारा इसका नाम रखा जाता है ल्यूट्रोगल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेलीज ऑटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. The name, okay, the name, that is very very important. You have to learn it. Okay, just learn this name. Okay, and for the first 24 hours Misbil was neither hostile nor friendly. अब स्टार्टिंग में जब उस 24 आवर्स के लिए था तो वो ना तो अनफ्रेंडली था और ना तो वो हॉस्टाइल हुआ, ना तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ, ना तो वो मतलब अनफ्रेंडली हुआ. ठीक है, वो मतलब फ्रेंडली अनफ्रेंडली दोनों ही नहीं हुआ. He was simply aloof. Aloof here means alone. Clear? Aloof here means alone. And indifferent. Indifferent, keeping a distance. दूरी बना के रखा उसने, otter ने. Choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. और सोना कहाँ पसंद किया? उसके बेड से, अथर के बेड से दूर फ्लोर पे, क्योंकि वो अभी फैमिलियर नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा अकवर्ड फील कर रहा है. The second night Misbil came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my
knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy. Apathy here means absence of interest. Okay, absence of interest, and take a keen, much too keen interest in his surrounding. धीरे धीरे वो उस एनवायरमेंट में क्लोज होने लग जाता है। जब उसको टाइम बीतता है वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने लग जाता है। सेकेंड नाइट मिसबिल जो है आता है उसके पास, बेड के पास, और फिर उसके बाद उसके क्लोज होता है, उसके नीज तक जाता है, आराम से रहता है। और मॉर्निंग में भी मतलब कि वो अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। धीरे धीरे वो उस माहौल में एडजस्ट होने लगता है। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. अब ये जो है जब इसको बॉडी बेल्ट के साथ इसको मतलब कि बॉडी बेल्ट बनाता है और इसको जो है बाथरूम की ओर ले जाता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है पानी के साथ। उसमें उछलता है, प्लंग करता है, प्लंग माने जंप करना, पानी के अंदर रोल होता है, उसमें घूमता है और ऊपर नीचे लेंथ बाथ टब में पूरे तरीके से मतलब कि पूरे तरीके से हर तरह की एक्टिविटी वो पानी में करता है और उसको बहुत ही मज़ा आता है। स्प्लैश करता है पानी में, मतलब कि पूरे तरीके से वो फुल एंटरटेन कर रहा है अपने आप को बाथ टब में। This I was to learn is a characteristics of otter. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A ball must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in that splashed in until it overflows. अब यहाँ पर ये अथर बता रहे हैं कि ऑटर इज एंजॉइंग हिज बाथ इन द बाथरूम इन द बाथ टब। ओके, हर पानी की हर बूंद को वो एंजॉय कर रहा है। एज इट वर वन कुड से दिस, जैसे कि वो लास्ट हो, इस तरीके से पानी की हर बूंद को एंजॉय कर रहा है। और बाउल जो है, पानी का जो बाउल है वो उसके ऊपर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, हर चीज को वो पानी में एंजॉय कर रहा है। उसके ऊपर पानी का जो बाउल है वो ऊपर से गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, वो उसमें बैठा हुआ है। ठीक है ना, एवरीथिंग ही इज इंजॉइंग इन द वाटर एज मच एज ही कैन। Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking, causing anger or some other reaction here. Provoking means causing anger. तब ये देख रहा है कि वाटर जो है कंटिन्यू मूव रहना चाहिए और उसके ऊपर गिरना चाहिए और वो उसको इंजॉय करे। स्टैटिक, और जबकि ये है कि वो वेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से गुस्सा आ सकता है, बट वो पानी को इंजॉय कर रहा है और उसके हर बूंद को इंजॉय कर रहा है। 2 days later, Misbill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor and led to the bathroom. अब 2 दिन बाद क्या होता है कि ये पहले तो ये नहला के इसको एंजॉय करवा देता है बाथरूम में, बाथ टब में। ये हर मोमेंट को एंजॉय किया रहता है। ही एंजॉयड एवरी ईच मोमेंट इन दैट बाथरूम इन बाथ टब। तो अब क्या होता है, ये खुद ही चला जाता है। ये देखता है कि बेडरूम में ये नहीं है। जब ये आगे बढ़ता है तो देखता है उसकी टेल जो है ना वो राउंड हो रही है, गायब हो गई आगे से, और वो कहाँ गई, बाथरूम की तरफ चली गई, यानी कि वो खुद बाथरूम में चला गया। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling means trying to do something in a clumsy manner, यानी कि कुछ काम करना, clumsy manner में कुछ काम करना। At the chromium taps with his paws, क्रोमियम टैप्स को अपने पास के साथ, क्रोमियम इज अ नेम ऑफ द मेटल, तो वो उसके साथ जो है वो उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। क्रोमियम का जो टैप्स है उसको खोलने की कोशिश कर रहा है अपने पास से कि ये खुल जाए और पानी इसमें से स्टार्ट हो जाए। I watched amazed. In less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. और मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, उसने टैप को ऑन कर लिया और उसमें से इतना पानी आने लगा कि वो उसको इंजॉय कर सके। और फिर उसके बाद उसने कुछ समय बाद उसमें से अच्छा फ्लो आने लगा पानी का। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up still tighter, chittering and irritating and disappointing at the tap's failure to cooperate. और ये तो अच्छी बात है कि वो पॉजिटिवली उस टैप को जब ऑन किया तो वो सही डायरेक्शन में मूव हो गया, क्योंकि जब मेरे साथ मतलब मैं लाता था तो कई बार वो जो है उसको जब उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के टाइट कर देता था,
फिर वो इरिटेट होता, डिसअपॉइंट होता कि टैब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, टैब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस बात पे वो इरिटेट होता. Very soon, Miss would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. अब मिस जो है, मिस बिल जो है वो फॉलो करने लगा था उसको, ठीक है. फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी, और जब भी मैं उसके नाम से उसको बुलाता तो वो मेरे पास जरूर आ जाता, और वो ज़्यादा टाइम खेलने कूदने में उसके साथ बिताने लगा था. In that way we have finished half the lesson. Okay, later part of this lesson we will discuss in our next video lecture. Okay class, and in online class we will discuss this lesson. If you have any kind of problem, we will go through the text in our online class. Your homework is to write the summary of taught portion, and you will have to do the question summary only. Yes, you will have to write the summary of taught